इंग्लिश मिडियमचं तुम्ही काल बोललेलात ना त्याचा पण पाठवा तर ते Good morning, everyone. Good morning. Meeting ID not available. किसी बच्चे ने भी भेजा है, वो स्टूडेंट ने वो स्क्रीनशॉट भेजा है अमन।
Hello, good morning, students. So let's start today's lecture, biomolecules. Earlier we had completed with the 3 chapters, halogen derivatives, alcohols, phenols and ethers, aldehydes, ketones and carboxylic acids. So today we'll be moving with the new chapter, biomolecules. We are familiar with the word biomolecules. The word itself explains the meaning living molecules. Are they living? No, they themselves are not living, but used to carry out various life processes and essential for life processes is called as biomolecules. And they include what? The very first is carbohydrate. Is it? So the very first is carbohydrate. If you break the word, you get this carbohydrate. There's carbon, oxygen, and hydrogen. Except these 3 elements, no other elements are present in carbohydrates. Okay. As we are familiar, we are having various classification of carbohydrates based on taste, based on functional group, then based on configuration. First is based on taste, that is sugars and non-sugars. Sugars means what? The carbohydrates which are sweet to taste are called as sugars, and which are not sweet to taste are called as non-sugars. In the sugars, they include which one? Monosaccharides, correct? And oligosaccharides. Oligosaccharides. Now, what is the difference between this two, monosaccharides and oligosaccharides? Monosaccharides are mono, single, saccharides, sugars. They are having only single sugars present in them. What do you mean by single sugars? That they cannot be hydrolyzed. Cannot be hydrolyzed further. And oligosaccharides, they can be hydrolyzed further. Then what is polysaccharides? So there are 3 types. So they cannot be hydrolyzed. This both can be hydrolyzed. This can be hydrolyzed only ranging from 2 to 10. If they are hydrolyzed to simple sugar, to monosaccharides ranging from 2 to 10, then only oligosaccharides, and more than 10, then they are called as polysaccharides. Correct? Now here, which can be monosaccharides? Monosaccharides are having carbon atom 3 to carbon atom 6. Carbon atom 3 to carbon atom 6. Why 3? Why 3? Because at least one carbon should be in between, which is having 4 valencies, and it should be attached to 2 other carbon atoms. So if I draw the structure here, okay, so this way. So what you can see, this is a chiral carbon atom attached with 4 different atoms or group of atoms. So minimum the structure should be there. Therefore, we say that it should have minimum 3 carbon atoms. Then after that, you're having 2 ranging up to 6 carbon atoms. When they're having functional group aldehyde, they are called as aldoses. And when they're having functional group ketone, then they are called as ketosis. One more, I'll arrange the same examples. Here, say look, CH2OH. Here. C double bond O, CH2OH. मतलब क्या किया? This H shifted here, so you get here is CH2O, and this H shifted here OH. So they are what? Functional isomers of each other, but due to presence of ketone functional group, this becomes what? Ketosis. Clear? Aldehyde, aldoses, ketone, functional group ketosis. Now, difference between them both is that functional groups aldoses and ketosis. Clear? Now, here they're having 3 carbon atoms, therefore they are also called as trialdoses. 3 carbon atom, so triketosis. So जैसे जैसे carbon atom बढ़ते जाएगा, we are having 4 carbon atom, then they are called as tetrosis, 5 pentosis, and 6 hexoses. Depending upon the functional group, you can give them suffix aldoses and ketosis. Yeah. Now further, we'll go here. Oligosaccharides, they are having 2 to 10. What 2 to 10 means? They are having what? Monosaccharide. When they are hydrolyzed, they give you simple sugars ranging from what? 2 to 10. 2 to 10. For example, sucrose. Very simple example. C12, H22O11. When hydrolyzed further, we get here is what? Glucose and fructose. So what type it comes here is
it comes oligosaccharides because it is hydrolyzed further, and it gives you only two simple monosaccharides. Therefore, in oligosaccharides, it's come under which class? Disaccharides. Clear? So up till from disaccharides, trisaccharides, we can go up to where? 10. 10 means what? Decasaccharides. Clear? Now polysaccharides. Now what is polysaccharides? Polysaccharides means what? They are having simple monosaccharides ranging from more than 10. When you are having more than 10, then they are called as polysaccharides. As you are familiar with the word poly, you have written down N. So when you are having example, there is C6H10O5 रहेगा formula to the base N, then it is polysaccharides. So what you have to observe N. N रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा? Polysaccharides. N नहीं है तो polysaccharides नहीं होगा. And N means what? Number of times polysaccharides. In this, the examples comes are what? Starch, then glycogen, cellulose. This all comes under the class what? Polysaccharides. Now again come to topic taste. This both are sweet to taste. We are familiar with the sucrose, sweet, glucose, sweet to taste. So this both are what? Sweet to taste. ये जो है polysaccharides, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है. तो जो पॉलीसेक्राइड्स है उसमें क्या हो रहा है? टेस्ट नहीं होता है. So that's why they are called as what? Non-sweet sugars, or we can say they are tasteless. Polysaccharides का एक और खासियत है, they are water insoluble, and this both are water soluble. So water soluble and water insoluble. इस तरह से हमारे पास क्या है यहाँ पर classification. Now, so second classification on basis of Fisher projection formula. Fisher. तो फिशर ने वही बताया अकॉर्डिंग टू कायरल कार्बन एटम. कायरल कार्बन एटम, तो उन्होंने क्या बोला था यहाँ पर? अगर OH ग्रुप, ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में है, then it is denoted by capital D. And if the OH group is on the left hand side, it is denoted by L. D and L का कोई फुल फॉर्म नहीं है, इनको सिर्फ D और L नोटेशन से डोनेट किया गया है. अगर D के साथ में प्लस साइन है तो वो क्या हो जाएगा? D है. D मतलब OH group is on right hand side, and प्लस साइन का मतलब क्या होगा? कि ये जो है it is moving in the right hand side only. That's why it is called as what? Dextrorotator. This does not mean कि हमेशा D वाला प्लस ही होगा, D वाला माइनस भी हो सकता है. मतलब क्या कि OH group is on the right hand side, but the molecule is rotating what? Anti-clockwise. Then you having D minus. So ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि D होगा तो प्लस या माइनस. So to observe carefully कि क्या क्वेश्चन में पूछा है. अगर उन्होंने D और प्लस दिया है तो आपको क्या बोलना है कि OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है और वो कैसे घूम रहा है? राइट हैंड साइड घूम रहा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. अगर D माइनस है तो OH ग्रुप कहां पर है? राइट हैंड साइड में है, पर ये घूम कौन सी साइड रहा है? लेफ्ट हैंड साइड है. मतलब which is this side? Legorotatory molecule. Clear? Same is what here when L, OH groups on left hand side, if L is plus, dextro, if L is minus, it is late. Clear? Okay. Now question arises कि अगर बहुत ज्यादा OH ग्रुप रहेगा तो जैसे ग्लूकोज C6H12O6 रहेगा तो कैसे करना है? And I have taught you formula कैसे लर्न करना है. ग्लूकोज का formula 1 aldehyde 4 secondary alcohol 1 2 3 and 4 secondary alcohol, और लास्ट वाला क्या है? प्राइमरी अल्कोहल. तो सेकेंडरी अल्कोहल को अरेंज करेंगे हम लोग यहाँ पर OH H OH OH H H OH, करेक्ट. 1 aldehyde 4 secondary alcohol 1 primary. ऐसे लर्न करोगे फटाफट से हो जाएगा. एंड यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा OH ग्रुप है, मतलब मेनी OH ग्रुप. So how will you identify? You have to look at the last carbon atom, last chiral carbon atom. This all 4 carbon atoms are chiral carbon atoms, correct? So you have to observe the last carbon atom. अगर OH group right hand side में है, that is D, and OH group left hand side में तो L. Clear? So you have to decide the D and L on basis of last carbon atom. तो ये बहुत अच्छे से बताया फिशर ने, और एक ही ड्रॉबैक हो गया फिशर का. क्या ड्रॉबैक हो गया? बराबर ये he was not able to explain the above properties, that if the above changes then what will happen, he did not explain. This was only one drawback of what? Fisher. बाकी सब ठीक. अभी यहाँ पर इसमें एक और देखते हैं जो हमने बोर्ड्स में नहीं देखा था. यहाँ पर देखते हैं क्या देखते हैं.
हाँ? ये नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा क्लीन करके वापस आगे लिखते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉपर है। CHO 1 2 3 4 एंड प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। 1 2 3 4 OH H OH OH H H OH H। तो ये कौन सा कार्बन एटम है? फोर्थ। यहाँ पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो ये कौन सा हो गया? D। अभी यहाँ पर क्या करते देखते हैं। हम लोग नंबरिंग करेंगे पहले कार्बन को, तो थोड़ा सा इजी और हो जाएगा हमारे लिए। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन। OH ग्रुप H OH H H, बाकी सब ठीक है। नाउ क्या चेंज कर रहे हैं? ये जो कार्बन आइटम है, सेकेंड कार्बन आइटम, इसको हम इंटरचेंज करते हैं H एंड OH। तो देखो चेंज हो गया यहाँ पर। ये फिशर के हिसाब से डी है और ये डी ग्लूकोज है, बट क्या किया है अपन ने? चेंज कौन सा किया है? सेकेंड पोजीशन वाला कार्बन आइटम का चेंज कर दिया है। जब इस तरह से चेंज हो जाता है तो पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, बट ओनली द पोजीशन ऑफ एटम्स ऑन सेकेंड कार्बन आइटम पर चेंज होगा। स्पेशली हाईलाइटेड कौन सा है? सेकेंड कार्बन आइटम। when the second carbon atoms position are interchanged, then they are called as what? Epimers. Something new today. We have not studied this earlier, so today new part is what? Epimers. So what are epimers? Epimers are the isomers in which the position of atoms on second carbon atoms are interchanged. They are called as epimers. We had earlier done the word anomers. I think so everybody is familiar with the anomers. What are anomers? When the position of H and OH is interchanged on which carbon atom? On the first carbon atom, correct. On the first carbon atom पर change करते हैं तो उसको हमने क्या बोला था? Anomers. आज नया पढ़ा है, second carbon पे interchange होता है तो epimers. First carbon पे change करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अल्फा एंड बीटा। अल्फा कब? जब फर्स्ट कार्बन पे अल्फा, फर्स्ट कार्बन पे OH group is on the right hand side तो अल्फा, और फर्स्ट कार्बन पे OH group is on the left hand side तो बीटा। तो वो हमने देखा था एनोमर्स, और अभी यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे इंटरचेंज होता है तो एपीमर्स। गेटिंग दिस पार्ट? बढ़े आगे। तो भी इनका जरूरत क्यों पड़ा एपीमर्स और एनोमर्स का? We have discussed 5 reasons. Correct earlier. These are the 5 reasons कि this aldehydes, मैंने वर्ड यूज किया aldehydes, क्यों यूज किया वर्ड aldehyde? क्योंकि इसमें फंक्शन क्या है? aldehydes. This glucose which are having aldehydes present in them, they do not show which test? Correct. Tollens reagents, or we can say Pahalin solutions test. They are not reduced with Tollens reagents. And we are familiar, aldehydes reduce होता है, यहाँ produce नहीं हो रहा, इसके लिए जरूरत पड़ा। दूसरा रीजन क्या है कि क्या हो गया था कि यहाँ पर जब इनको हम लोग रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग व्हाट? 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजाइन, तो हमें हाइड्राजोन मिलता है ना, बट यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ये हाइड्राजोन नहीं मिलता है। करेक्ट, सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन क्या था? थर्ड रीजन है जब ये अल्डिहाइड्स या जब ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाते हैं तो भी अल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहता है, तो वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता। सिंपल है, व्हेन इट रिएक्ट्स तो ग्लूकोज ऑक्साइड बनता है, ये हमने देखा था। बट जब ये बीच वाले कार्बन एटम एसिड एटाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप फ्री रह जाता है। अल्डिहाइड ग्रुप डू नॉट रिएक्ट विद व्हाट? हाइड्रोक्सिल अमाइन। दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ व्हाट? रिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये रीजंस क्लियर? तो उस रिंग स्ट्रक्चर्स के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। तो एनोमर्स कहां पर दिखने मिलेगा हमको? रिपीट करो। वापस रिपीट करता हूं, ठीक है, ओके। अगेन आई रिपीट, क्या हो गया था? एनोमर्स, एपीमर्स। तो पहले एपीमर्स बताते हैं। एपीमर्स में क्या हो गया था? when on the second carbon atom there is an interchange between the atoms। देखो इधर H का कौन सी साइड पर है? लेफ्ट हैंड साइड में। इधर H कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में। बाकी सब सेम है। तो जब सिर्फ सेकेंड कार्बन में इंटरचेंज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपीमर्स बोलेंगे।
क्लियर? अभी ये फर्स्ट कार्बन एटम वाला मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर वाला डेफिनेशन लर्न करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगर एक फर्स्ट कार्बन एटम पर OH और H इंटरचेंज होते हैं तो उसको एनोमर्स बोलेंगे। उसमें कैसे, OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा, और फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो बीटा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो फटाक से समझ में आ जाए। देखते हैं इसको, रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। अच्छा, तो एक बार रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। कैसे ड्रॉ करना है, बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है, पर पूरा बेंजीन रिंग क्या नहीं करना है, कंबाइन नहीं करना है, ये हमको पता है ना, बराबर? कितने कार्बन एटम हो गए, 1 2 3 4 5। और ये कैसे है, दिस लाइंस पे कौन सा ग्रुप आएगा, ये सेकंड और जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे की तरफ है, मतलब H OH H OH OH H, और यहाँ पर OH, ये हो गया सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। 6 कार्बन पे क्या है, CH2OH है, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, अल्डीन, C डबल बॉन्ड O। इसी चेन प्रॉपर्टी क्या किया, बेंड कर दिया। इसको भी रिंग चेन बनाते हैं। हमने हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है ना, रिंग चेन कैसे बनाना है, क्या करना है, उसका प्रोटोनेशन करना है, पहले वो इधर जाएगा, फिर एक स्ट्रक्चर बनता है, और उसके बाद क्या करते हैं अपन, डीप्रोटोनेशन करते हैं, तो यहाँ से H निकल जाता है। ये कैसे हो जाएगा, H निकलेगा, ये इंटरचेंज होगा। करेक्ट, पूरा स्टेप नहीं बता रहा हूँ, एक बार शॉर्ट में वापस बता। मैं रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिससे इस ओपन चेन से, ये ओपन चेन अपन ने स्टडी किया था, इसमें क्या ऐड करेंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा फर्स्ट कार्बन पे, दिस इज फर्स्ट कार्बन पे, और क्या हो जाएगा, OH और H इंटरचेंज हो जाएगा, दो चीज, ठीक है। जब H यहाँ पर ऐड कर दिया है और OH यहाँ पर आएगा तो हम उसके बाद क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे, तो OH जो इधर गया है वहां से बाहर निकल जाएगा, ये CH2OH ऊपर, तो CH2OH ऊपर, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, H, फिर यहाँ पर OH गया था तो हमने H निकाल दिया है तो O ही बचेगा, करेक्ट है ना। और ये C डबल बॉन्ड O है, उधर क्या ऐड कर दिया अपन ने, प्रोटॉन, तो OH हो जाएगा, इधर H। बाकी के कार्बन एज इट इज, बाकी का नहीं दिखा रहा, बाकी का एज इट इज। अगर मैं ये फर्स्ट कार्बन को इंटरचेंज करता हूँ तो कैसे हो जाएगा, H और OH, बाकी का एज इट इज। तो भी मुझे यही दिखाना है आपको कि फर्स्ट कार्बन पर अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है मतलब कौन सा एनोमर हो गया, अब वो बीटा हो गया ना, और OH ग्रुप जब नीचे की तरफ है तो राइट हैंड साइड है। अभी समझ में आ रहा है, हाँ या ना, एवरीबॉडी क्लियर ना? Yes. हाँ, तो अभी एनोमर्स, एनोमर्स, हाँ वेरी गुड। तो एनोमर्स एपीमर्स, क्लियर डिफरेंस? एंड जब क्या हो गया, व्हाई एनोमर्स वर रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर आर 5 ड्रॉबैक्स। इसके लिए तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने तो नहीं आएगा, करेक्ट है, आपको रीजन आएगा कि रिंग स्ट्रक्चर का जरूरत क्या था, तो आपको सिलेक्ट करना है। तो उसमें क्या था, ये ओपन चेन क्या क्या नहीं देता है, अल्डोल कंडेंसेशन टेस्ट नहीं देता है, करेक्ट, फिर और क्या नहीं देता है, टेस्ट विद वैलेंस वैलेंस रिएक्शन नहीं देता है, फिर और क्या देता है, 2,4 डाइफिनाइल हाइड्रोजन के साथ टेस्ट नहीं देता है, तो इसके लिए जरूरत पड़ा। तो दिस रिंग आइसोमर्स आर कॉल्ड एज एनोमर्स, ऐसे लर्न कर सकते हैं, या फिर क्या लर्न कर सकते हैं, जब फर्स्ट कार्बन एटम पर इंटरचेंज होता है पोजीशन तो उसको भी एनोमर्स बोलते हैं, एंड एपीमर सेकंड कार्बन, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अभी अपन इसके टॉपिक्स पर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में अभी कितने कार्बन एटम हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में, कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6 वाला कार्बन एटम बाहर है। जब 5 कार्बन एटम रिंग में होते हैं तो क्या बोलते हैं, पाइरेन बोलते हैं ना। तो दिस स्ट्रक्चर रिसेंबल्स टू व्हाट, पाइरेन, बट ये किसका स्ट्रक्चर्स है, ग्लूकोज का, या OSC, OSC का मतलब बताया हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइरेनोस, करेक्ट, इसलिए इनके नाम क्या हो जाएंगे, पाइरेनोस।
तो कैसे याद रखना है, जब भी रिंग में 5 कार्बन एटम होगा, 5 कार्बन एटम होगा, तो हमेशा सफिक्स क्या लगेगा, पायरानोस। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, ये किसका स्ट्रक्चर था, ग्लूकोज का। रिंग कैसा बन गया, सिमिलर टू पायरान, इसलिए दोनों को नाम को अटैच करेंगे और नाम क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोपाइरानोस। एक्सेलेंट, बराबर है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। अल्फा डी क्लियर हो रहा है और बीटा डी। तो सिमिलरली इसी तरह से फ्रुक्टोज का आएगा। फ्रुक्टोज में पर एक डिफरेंस क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज में फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम रिंग के बाहर होते हैं, तो रिंग में 4 ही कार्बन एटम आएंगे, 4 ही कार्बन एटम आएंगे, तो वो किससे सिमिलर हो जाएगा, फ्यूरान से, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोफ्यूरानोस। क्लियर। नाउ फर्दर अभी हम चलते हैं डाइसैकराइड्स की तरफ। डाइसैकराइड्स में सबसे पहला अपना जो है वो क्या आएगा, सुक्रोज। सबको याद है ना सुक्रोज के बारे में, एक बार शॉर्ट में आपस बता देते हैं। सुक्रोज में कौन कौन से सैकराइड्स अटैच होते हैं, सुक्रोज में अटैच होते हैं ग्लूकोपाइरानोस एंड फ्रुक्टोफ्यूरानोस। बट लर्न क्या करना है उसे उम्र, सुक्रोज, सुक्रोज में कौन कौन कंबाइन होता है, अल्फा ग्लूको, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, और कौन कंबाइन होता है साथ में, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ये लर्न करना है आपको नाम। सुक्रोज में कौन कौन कंबाइन होता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। तो अभी इसमें 6 कार्बन एटम है, इसमें 6 कार्बन एटम है, बट इसमें कैसा है, C6H12O6, इसमें भी C6H12O6, बट इसका फॉर्मूला C12H22O11। अब कंपेयर करो कितना कम है, 6 12 बराबर हो गया, 6 6 12, 12 12 24 हो रहा है, पर इधर कितना है 22 ही है, मतलब 2 कम है, और यहाँ पर 6 6 12 है, इधर क्या रहेगी 1 कम है, मतलब क्या 12 होना है, H2। इसका मतलब प्रूव हो गया कि ग्लूकोपाइरानोस और फ्रुक्टोपाइरानोस जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर गिरता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर गिरेगा और क्या बन जाएगा आपके पास, सुक्रोज। तो दिस वे वी कैन इजीली प्रिपेयर सुक्रोज। तो ये दोनों लिंक जो होते हैं कहां पर लिंक होंगे, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम और फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन एटम। आप बोलते हैं ना C1 C2, केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, तो याद रखना है C1 C2 पर लिंक होगा, कौन होगा, सुक्रोज। C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, और C2 किसका, बीटा डी फ्रुक्टोज। दे बोथ आर लिंक्ड बाय व्हाट, by oxygen atom, and when both are linked by oxygen atom then it is called as glycosidic linkage. Very good. तो glycosidic linkage बोलते हैं उसको, और उस कार्बन को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक कार्बन बोल सकते हैं, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक कार्बन बोल सकते हैं, या फिर इसको एनोमेरिक कार्बन भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट कार्बन एटम को हम 2 वर्ड से प्रोनाउंस कर सकते हैं, either by glycosidic linkage or by glycosidic carbon atom or by anomeric carbon. Clear? इसकी खासियत क्या है, चलो now students, इसकी खासियत क्या है, ये reducing है या non reducing है, we'll speak. सुक्रोज reducing है या non reducing, बोलो, reducing है, okay, any else, anyone else? हाँ, reducing क्यों है, क्लियर नहीं आवाज आ रहा है, आवाज वापस बोलो। सर जो फ्लोरेंट एजेंट से रिएक्ट करने पर वो रिड्यूसिंग है, नहीं, गलत है आंसर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रीजन बताऊं कि पता है आप लोगों को, ठीक है मैं बोलता हूँ रीजन। देखो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट और सेकेंड कार्बन एटम दोनों ऑक्यूपाई होगा किससे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और फर्स्ट कार्बन पे ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है, अल्डिहाइड, बराबर है, तो अल्डिहाइड रिड्यूसिंग है, और फ्रुक्टोफ्यूरानोस का कौन सा कार्बन एटम लिंक्ड है, सेकेंड कार्बन एटम, सेकेंड वाला कौन सा, कीटोन, तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑक्यूपाई हो गए, इससे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब फ्री कोई है ही नहीं, फ्री कोई नहीं, रिड्यूस कहां से होगा, इसलिए क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर, C1 C2
दोनों क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन का पोजीशन है, दोनों ऑक्यूपाई हो गए हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, इसके लिए अभी फ्री ग्रुप कोई अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई द शुगर्स आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो अपन जितना भी डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है, बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर्स है, जैसे माल्टोज, सेलिबायोज, लैक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स है। क्यों? क्योंकि इनमें लिंकेज कहां पर होता है, C1 और C4 पर, C1 और C4 पर। तो इनका सेकेंड जो रिंग रहता है उसका फर्स्ट कार्बन एटम का अवेलेबल रहता है, सिर्फ सुक्रोज में अवेलेबल रहता है। क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। लैक्टोज, लैक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मिल्क शुगर। लैक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर्स। उसके बाद आता है अपना स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च की खासियत क्या है? स्टार्च में क्या होता है, ये माल्टोज का ही पार्ट है, वो C1 और C4 पर लिंक होता है, C1 और C4 पर, बट उसमें C166 भी होता है। ऐसा कैसे, देखते हैं। स्टार्च में क्या हो जाता है, स्टार्च में दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ये मैंने आपको डिस्टिंग्विश करके लिखवाया भी था, बहुत से बच्चों को याद है, बहुत से बच्चे आई थिंक भूल गए होंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में क्या आ जाता है, अमाइलोज ओनली 20% ऑफ द स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन 80%. Amylose is linked at what? C1 and C4. Amylopectin at what? C1 and C6. ये याद रखना है, C1 and C6. अब इसका C1 C4 पर है, मतलब ये सीधा 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 है, सीधा सीधा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर। ये C1 C6 है, C1 ऊपर C6 नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब ये कौन सा है, ब्रांच्ड। ये पानी में डिसॉल्व होता है, वाटर सॉल्युबल। ये डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब वाटर इनसॉल्युबल। तो ज्यादा पार्ट वाटर इनसॉल्युबल है ना, इसका मतलब स्टार्च क्या हो गया, वाटर इनसॉल्युबल, या हम बोल सकते हैं पार्शियली सॉल्युबल, क्योंकि थोड़ा बहुत डिसॉल्व होता है ना, तो पार्शियली सॉल्युबल, या फिर हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल। तो स्टार्च में आपको याद रखना है कि क्या है, अमाइलोज। अमाइलोज कैसा है, C1 C4 पर और लीनियर, ये तीन चीज याद रखो तो फटक से लर्न हो जाएगा। अमाइलोपेक्टिन में 80%, C1 C6 पर ब्रांच्ड है, इनसॉल्युबल है, और ज्यादा पार्ट अमाइलोपेक्टिन का है। इसके लिए ओवरऑल कैसे हो जाएगा, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च इज इनसॉल्युबल। सेल्यूलोज, कहां से मिलता है सेल्यूलोज? सेल्यूलोज हमको मिलता है फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। तो हम ह्यूमन बॉडी में एंजाइम, वो एंजाइम एब्सेंट है जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है, तो हम हमारे से सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर क्यों खाते हैं, ताकि हमें क्या मिलेगा, यस, क्या मिलेगा, रिपीट, बोलो भाई। Ragesh, Ragesh. यस For राकेश, vegetables. यस करेक्ट, बराबर है। तो इसलिए हम हमारे इसमें क्या होता है, वो एंजाइम का नाम याद है क्या, सेल्यूलेज। सेल्यूलेज इज एब्सेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे इसमें एब्सेंट होता है, पर ये हर्बीवोरस एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए हर्बीवोरस एनिमल्स इसको आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सेल्यूलोज में भी कहां पर लिंक होता है, इट इज लिंक्ड एट व्हाट, C1 एंड C4, C1 एंड C4। तो इसको कैसे लर्न करना है, इट इज लीनियर कंडेंसेशन बीटा पॉलीमर, लीनियर कंडेंसेशन बीटा पॉलीमर। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज व्हाट, आर स्टोर्ड एनर्जी, गोडाउन है अपने पास, गोडाउन के जैसे है, मतलब वो क्या करेगा, हमारे अंदर गोडाउन मतलब एनर्जी स्टोर कर करता है, और जब हम लोग उपवास वगैरह फास्ट करते हैं तो वो रिलीज करेगा। So it is working as which is an oxidation product, energy to the body. It gives you energy to the body. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स में अभी जो हमने रिएक्शन नहीं किया था अभी तक, मैंने 6 रिएक्शंस नहीं दिखाए, क्योंकि 6 रिएक्शंस अपने रेगुलर केमिस्ट्री में कर चुके हैं। अभी जो नहीं किया था रेगुलर केमिस्ट्री में, वो रिएक्शंस दिखाता हूं मैं। तो लेट अस सी दिस हियर इज रिएक्शंस। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है आपको।
मैंने सेकेंड कार्बन को हाईलाइट कर रहा हूं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक साथ लिखेंगे CHOH। मतलब ये कितनी बार हो गया? 3 बार, 3 4 5, 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ओके, अभी ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। सर आप म्यूट हो। सर यू आर म्यूट। C डबल बॉन्ड OH, नीचे का एज इट इज CH2OH। इसको वापस करना है, ये इधर जाएगा, H यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना? सो कैसे हो जाएगा? CH एक, ठीक है? CH2OH, H शिफ्ट किया इधर, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर? इस तरह से, और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एज इट इज, देन यहाँ CHOH थ्राइस, फिर इसके नीचे यहाँ पर CH2OH। या फिर इसको और कैसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग? इस तरह से CHO तो कैसे हो जाएगा? ये H वापस अपनी जगह पर, डबल बॉन्ड अपनी जगह पर, तो बट HOH। फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है। तो ये जो किया, इस मेथड को क्या बोलेंगे? हु विल स्पीक? क्या किया इधर? दिखाई दे रहा है ना? स्टूडेंट स्पीक, कम ऑन। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर है, उधर क्या किया है, क्या चेंज किया है? लुक एट द स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली एंड आंसर मी। एपीमर, एपीमर, ओके। व्हाट आर एपीमर्स? एपीमर तो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? फर्स्ट और जो नीचे ब्लैक में स्ट्रक्चर लिखा है वो। मैं फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर किया है ना, उसमें चेंजेस जो किया है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे वो पूछ रहा हूं मैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर और जस्ट उसके बाजू वाला सेकंड स्ट्रक्चर है। आप कौन सा बोल रहे हो? फर्स्ट और थर्ड वाला बोल रहे हो। फर्स्ट और थर्ड नीचे वाला वो एपीमर्स है, करेक्ट है। मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूं, उसमें क्या प्रोसेस क्या किया है, ठीक है मैं बताता हूं क्या किया है। देखो, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है और H शिफ्ट हो रहा है। When a proton and double bond is shifted, then it is called as enol formation. What it is called as? Enol formation. इसलिए प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? Enolization. आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? हाँ या ना तो बोलो। Yes, everybody. Yes, very good. So it is called as enolization. मतलब हमने वो करते हैं ना, इसको टॉटोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। ये टॉटोमेरिज्म टाइप है, बट एक्चुअली टॉटोमेरिज्म नहीं है, टॉटोमेरिज्म ही है, बट इसमें क्या बोलेंगे इसको? इनॉल फॉर्मेशन। क्योंकि क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब इन और अल्कोहल मतलब OH, दोनों को कंबाइन करके वर्ड क्या बनाया है? इनोलाइजेशन। तो वही अरेंज किया है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर्स अलग अलग मिले हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? तो आप फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मैं बोलता हूँ ग्लूकोज, और जो लास्ट स्ट्रक्चर है थर्ड स्ट्रक्चर, उसका नाम बताओ। मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, उसका नाम देखते हैं। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे हम? ग्लूकोज। और ये जो स्ट्रक्चर है देखो, टॉटोमेरिज्म करके मिला है या इनोलाइजेशन करके मिला है। तो फर्स्ट और लास्ट में तो प्राइमरी अल्कोहल है, इधर से इधर क्या है? कीटोन ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? फ्रुक्टोज।
इसका मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कैन बी इंटरचेंज। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया अगर ग्लूकोज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ग्लूकोज को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय टॉलेंस स्पेलिंग रिएक्शन, तो फ्रुक्टोज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, इज फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर और नॉट, या does fructose can reduce by Tollens reagent और Schiff's reaction। तो हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर देखिए क्या बोलते हैं, भाई कीटोन का ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप किससे रिड्यूस नहीं होता है, टॉलेंस से, Schiff से रिड्यूस नहीं होता है, फाइन से रिड्यूस नहीं होता है। बट आज हमने क्या देखा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के ही आइसोमर है, दे आर शोइंग व्हाट, टॉटोमेरिज्म, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इनोलाइजेशन, enol formation। That's why when you interconvert this, it can be reduced, and hence what we can say statement, fructose can be reduced by what, Tollens reagent, though it does not have aldehyde group। ये हमको एकदम रटा रटा लर्न करना है, ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये किससे बताया है आपने को, ये जो है देखो वापस क्या है, अल्डिहाइड्स ग्लूकोज इंटरचेंज कर एक प्रोडक्ट मिला, फिर उससे क्या मिला हमको, एक प्रोडक्ट मिला, इसका नाम क्या था, ग्लूकोज, इसका नाम है मैनोस, इसका नाम क्या है, मैनोस, समथिंग न्यू टुडे अगेन। ग्लूकोज हमने देखा था, ग्लूकोज का भाई कौन सा है, मैनोस। भाई क्यों बोला, क्योंकि इससे माइनर चेंज है, इसके सेकंड कार्बन एटम पर भी क्या है, H is on the which side, left hand side, and here OH is on the left hand side on the second carbon atom, then they are called as epimers। तो नाम क्या होगा, ग्लूकोज और मैनोस, और पूरा सिर्फ इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनता है, फ्रुक्टोज। तो दिस इनोलाइजेशन मेथड वाज गिवन बाय अ पर्सन कॉल्ड एज समथिंग, फालतू नाम है थोड़ा सा, देखते तो भी, LOBRY, लॉब्रे, D Brun, BRUYN, Brun, when Eckenstein rearrangement। Students please note down in your notebook everybody, थोड़ा नाम बकवास है बट लर्न करना पड़ेगा, इजी रिएक्शन है, नाम बड़ा है रिएक्शन इजी है। लॉब्री, D Brun, BR, when Eckenstein rearrangement reactions। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्लूकोज इज इंटरचेंज टू मैनोस और ग्लूकोज कैन बी इंटरचेंज टू फ्रुक्टोज। This inolization method, it is done in first and second carbon atom, therefore it is also called as 1,2 inolization। This method was given by whom, was given by what, the person called as Lowry, G Brun, when Eckenstein's, and they have only rearranged, so it is called as rearrangement reactions। Clear? Note down this everybody in your notebook। I'll wait for 2 minutes, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। लिख के हो गया सबका, तो 10 मिनट और चलाते हैं क्लास, देखते हैं। अभी प्रोटीन्स कर लेते हैं अपने। प्रोटीन्स बहुत इजी है, प्रोटीन्स में याद रखने लायक बात क्या है, एक तो अल्फा अमीनो एसिड याद रखना है। अल्फा अमीनो एसिड एवरीबॉडी फेमिलियर कि क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है उसके पास 2 ग्रुप होगा, COOH और NH2, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन एटम, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन एटम पर क्या ग्रुप प्रेजेंट है, COO और NH2 दोनों प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अल्फा अमीनो एसिड्स। और ये जब अल्फा अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटीन्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, अल्फा अमीनो एसिड्स है। ज्यूटर आयन, आई होप एवरीबॉडी इज रिमेम्बरिंग ज्यूटर आयन, IMP टॉपिक बताया था। ये क्या होता है, इसमें COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ज्यूटर आयन। मतलब उसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, both are simultaneously present, that's why that is called as ज्यूटर आयन। और अगर उसमें से एक ही ग्रुप इंक्रीज कर दिया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज कर दिया तो एसिडिक हो जाएगा, NH2 इंक्रीज कर दिया तो बेसिक हो जाएगा, और दोनों कैसा है,
इक्वल है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है आपको, सिर्फ ये C डबल बॉन्ड O OH, ये R इधर NH2 BH, बराबर, ये हो गया अपना अल्फा अमीनो एसिड। अगर ये मैं बहुत सारा लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के और वो यहां से H NH CR COOH, ये मैंने दो अल्फा अमीनो एसिड लिया है, निकाल के क्या लिंक हो जाएंगे, देखो तो लिंक बाय व्हाट, C डबल बॉन्ड O NH, बाकी का ऐसे। तो C डबल बॉन्ड O NH मतलब कौन सा हो गया, अमाइड, so the link by what, amide linkage, and this amide linkage को क्या बोलते हैं अपन, पेप्टाइड, करेक्ट, that's called as what, peptide linkage, and जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो polypeptide. If their molecular mass is more than 1000 then they form proteins. Up till that they are simple peptide linkages. दो अल्फा अमीनो एसिड ज्वाइन किया है तो एक पेप्टाइड लिंकेज मिला, तीन ज्वाइन करेंगे तो दो मिलेगा, चार ज्वाइन करेंगे तो तीन मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जितना अल्फा अमीनो एसिड्स होगा उससे हमेशा एक कम हमको क्या मिलेगा, पेप्टाइड लिंकेज। एक एग्जांपल लर्न करवाया था, याद होगा, इंसुलिन का। हाउ मेनी इंसुलिन्स आर देयर, 51 अल्फा अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, so peptide linkage how many, only 5050 alpha amino acids are peptide linkages are present, correct है ना, 50 alpha amino acids are present, 51 alpha amino acids present, and how many peptide linkage, 50 peptide linkage in insulin, ठीक है ना। फर्दर तो प्रोटीन्स में क्लासिफिकेशन में क्या आता है, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर और शेप्स के हिसाब से। शेप्स पे दो होते हैं, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। ग्लोबुलर वर्ड से ही ग्लोब जैसा शेप होगा, मतलब गोल होगा, तो अभी ग्लोब तो हमारे इसमें होता ही नहीं है। ये प्रोटीन्स एक्चुअली बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो फिट नहीं कर पाते अपने बॉडी के अंदर, तो इसको क्या करते हैं अपन, फोल्ड करके रखते हैं। फोल्ड करके रखेंगे तो क्या हो जाता है, ग्लोब शेप आ जाता है, इसको क्या बोल देंगे अपन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और फाइब्रस प्रोटीन्स मतलब जो बताया था आपको मैंने, नेल्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलेंगे अपन, फाइब्रस प्रोटीन्स। तो इस ग्लोबुलर फाइबर में इंपॉर्टेंट लर्न क्या करना है हमको, इंपॉर्टेंट लर्न करना है एग्जाम्पल्स, लर्न एग्जाम्पल्स, केराटिन, कोलेजन एंड फाइब्रोनिन, मायोसिन, दिस आर ऑल व्हाट, फाइब्रस प्रोटीन्स। अगेन आई रिपीट, केराटिन, कोलेजन, फाइब्रोइन, मायोसिन, ये सब नाम 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े थे, या बायो में भी आपने पढ़ा होगा, ये सब कौन से फाइब्रस प्रोटीन्स है। Then globular proteins, hormones, antibodies, hemoglobin, albumin, ये सब कौन सा है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। फाइब्रस प्रोटीन्स पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में डिसॉल्व होता है। अभी ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, केमिकल कंपोजिशन बोल दो या फिर शेप्स के हिसाब से बोल दो। तो इसमें नहीं, एक मिनट रुको, शेप्स नहीं आएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से आएगा, शेप्स पहले हो गया, अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से। चार देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी मतलब ये सिंपल प्राइमरी, सेकेंडरी का मतलब क्या हो जाता है, यही रहता है पर बहुत ज्यादा रहता है। देखो दे आर इन विच फॉर्म, कॉइल फॉर्म, व्हेन दे आर बेंट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड इट इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड बीटा हेलिक्स। इसमें बीटा में भी क्या होता है, बीटा पिलेटेड शीट्स बोलते हैं, और बीटा पिलेटेड शीट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि चेन को एक्सटेंड किया जाता है। किससे एक्सटेंड करेंगे, बाय व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनको प्रेस करके रखते हैं, इनको स्ट्रेच किया तो पूरा इलास्टिक जैसा लंबा हो जाता है, और वापस दे कैन बी कंप्रेस्ड इन द कॉइल शेप। क्या हो गया, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। टर्शरी में यही होगा फॉर 3 डायमेंशनल, और क्वाटरनरी क्वाटरनरी में क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अभी एक टाइप का प्रोटीन आया जो हमने नहीं पढ़ा था रेगुलर केमिस्ट्री में। 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। इसका क्लासिफिकेशन टाइटल क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सिंपल प्रोटीन्स, दिस प्रोटीन्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, are called as simple proteins. Conjugated proteins, word conjugated है, conjugated मतलब साथ में कुछ तो अटैच्ड है। मतलब क्या होगा, इसमें एक सिंपल प्रोटीन है और एक साथ में एक और सब्सटेंसेस है, तो जब वो दोनों साथ में होता है तो उसको conjugated प्रोटीन बोलते हैं।
तो जो दूसरा सब्सटेंस होता है वो प्रोटीनियस सब्सटेंस नहीं होता है, दैट इज नॉट अ प्रोटीनियस सब्सटेंस, दैट इज नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस, इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. व्हाट इट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब क्या होता है? इट इज अ नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस. तो उसको प्रोटीन में क्यों कंसीडर किया है? एक सिंपल एग्जांपल है, आपको फटाक से समझ में आएगा. हेमोग्लोबिन, हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. ब्लड प्रोटीन सब्सटेंस है, पर ब्लड में प्रेजेंट होने वाला आयन अगर हमारे ब्लड के साथ में नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड का हेमोग्लोबिन लेवल कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा हेमोग्लोबिन. इसका मतलब क्या हो गया? आयन शुड बी प्रेजेंट इन योर ब्लड. तो आयन क्या काम? आयन इज नॉट अ प्रोटीन. तो आयन क्या हो गया? प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस. दैट्स व्हाई द प्रोस्थेटिक ग्रुप दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो आयन की वजह से हमारा ब्लड कौन सा हो गया? रेड हो गया. तो ऐसे वाले प्रोस्थेटिक ग्रुप कम्स अंडर द क्लास व्हाट? क्रोमोप्रोटीन. व्हिच क्लास? क्रोमोप्रोटीन. वर्ड कहां पर आ गया? क्रोम. जैसे क्रोम बताया था आपको मैंने, क्रोम का मतलब होता है कलर. तो हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? Fe प्रेजेंट है, आयन, हेमोग्लोबिन. तो वो कॉन्जुगेटेड के कौन से क्लास में आ गया? क्रोमोप्रोटीन में. बराबर है. एक और बताया होगा, आपको याद होगा, कौन सा बताया था मैंने? प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर फूड विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो उनमें कौन सा एलिमेंट होता है? कम ऑन स्पीक स्टूडेंट्स. मैग्नीशियम. वेरी गुड. तो मैग्नीशियम भी क्या हो गया वहां पर? प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया. मैग्नीशियम बिकम्स व्हाट? प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया. कौन है भाई म्यूजिशियन? ये म्यूजिशियन कौन है? ये म्यूजिक बंद करो, चालू करे. तो Fe ने क्या किया? कलर लाया, इसलिए Fe को क्या बोलेंगे अपन? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे. और वो कौन सा है? क्रोमोप्रोटीन. देन ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल आ जाएगा माइसिन. ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन, नया कुछ है. दे आर डिराइव्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल प्रोटीन्स. सिंपल प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डिराइव करेंगे. मतलब ये सिंपल प्रोटीन्स को डिराइव करके हमको ये मिला ना. तो पेप्टाइड कौन से क्लास में आ गया? डिराइव्ड प्रोटीन्स. एक बार आप ये जो है सिंपल प्रोटीन्स जो था हमारे पास, उसको हाइड्रोलाइज किया ना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया और हमें क्या मिला? पेप्टाइड मिला. और इसको बहुत सारा लिखा, पेप्टाइड, PID. बहुत सारा हो जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड. तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड प्रोटीन्स. लास्ट टॉपिक, फिर स्टॉप कर देंगे. ठीक है ना? टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स टेस्ट करने के 4 टाइप्स है हमारे पास. बायूरेट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मिलेंस टेस्ट एंड नीनहाइड्रिन टेस्ट एंड मॉलिश टेस्ट. मतलब आपको सब्सटेंस जो दिया है वो प्रोटीन है कि नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय यूजिंग 4 टेस्ट: बायूरेट टेस्ट, माइलेंस टेस्ट, नीनहाइड्रिन टेस्ट एंड मॉलिश टेस्ट. तो बायूरेट टेस्ट में क्या होगा? इट इज जनरली टेस्ट फॉर पेप्टाइड लिंकेज. अगर उसमें वायलेट कलर आता है तो कंफर्म है प्रोटीन, नहीं तो प्रोटीन एब्सेंट. मैं टेबल बना के दिखा देता हूं आपको, तो आपको लर्न करने में, लिखने में इजी हो जाएगा. यू कैन नोट डाउन इन योर notebooks everybody. Topic is test for, दिख रहा है ना सबको बोर्ड पर? क्लियर? बायूरेट टेस्ट, मिलन. सर बोर्ड क्लियर नहीं है. थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, रुको. मैं बड़ा, ब्राइटनेस नहीं आ रहा है कि बड़ा लिखो? अभी देखो, सब ब्लर दिख रहा है. अच्छा ऐसा है क्या? तो मैं ओरली बोलूं, तुम लोग लिखोगे? यस सर. हाँ ठीक है. तो 3 कॉलम्स बना लो. पहले 3 कॉलम्स बना लो और फर्स्ट कॉलम में लिखो बायूरेट टेस्ट. ठीक है, बोलो ना. हेलो. फर्स्ट कॉलम में लिखो बायूरेट टेस्ट. या तो मैं पिक स्टैंड कर देता हूं, जाने दो, अभी मत लिखो, नहीं तो कल ऐसे समझ में नहीं आएगा. मैं आपको पिक फॉरवर्ड कर दूंगा, ये बेटर रहेगा. ओके ठीक है सर. ना? ओके. henceforth we stop here. Thank you. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक थैंक यू यू. सर. थैंक यू सर. ओके, मजा आ गया. अच्छी बात है. चलो.
हाँ आज तो कोई नया टीचर मिला ना, इतने दिन से सब नए वही थे, मैं आज नया आया ना। सर कैसा चल रहा है क्वारंटाइन? क्वारंटाइन अच्छा चल रहा है। सर आपकी बहुत याद आ रही है सर। आ जाओ क्लास में, गाना गाते हैं एक दिन। चलो ना सर, ढानू आओ ना आप कभी। अच्छा डालो, मैं मोदी को बोलता हूँ ट्रेन चालू करने के लिए। सर पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे हैं हम लोग, बस अच्छा आप लेक्चर में। हाँ ठीक है, ओके चलो बाय बाय एवरीबॉडी। बाय Yes, sir. Thank बाय you. सर। Bye. सर हो गया, डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो। Bye, students. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye bye. Bye, everyone. अरे Bye, बाय तो बोलो। sir. Bye bye. Bye, sir. Now we are host आपको बनाया, आप किसी लिंक करोगे बंद हो जाएगा। ओके